So in the last class, we learned about Schrodinger's wave equation, okay, where I tried to explain you that Schrodinger considered electron to be a wave, and he tried to write an equation for this movement or the path of the electron. And what he found is he wrote an equation like Hamilton psi is equals to E psi. Now, in this equation, Hamilton psi is equals to E psi. When Schrodinger tried to solve this equation and he tried to find out the solutions of these equations, we got a set of 4 numbers. These set of 4 numbers are called as nothing but quantum numbers. Today, I'm going to discuss about these quantum numbers, their application, okay, and all those things. So first of all, think like this, sir. Say for example, you are standing at a place, okay, and an alien comes to you, okay, and you have to tell your address to this alien. Now you will start saying, okay, I live in this universe, and then I live in a galaxy called as the Milky Way galaxy, and in that I live inside the solar system, that is in the system of the sun. And then in this solar system I live on a planet called as Earth. On this Earth I live on a continent called as Asia, and in this continent there is a country called India. In this country there is a state called as Odisha, and in that state there is a district called as Koraput. So you have to explain each and everything. And in that place Koraput there is a street called as some name, and then in that street there is a house with this color and this type of building. In there is a room. So you have to say complete address to this alien, yes or no? Yes, sir. In the same way, okay, एक इलेक्ट्रॉन का भी एक कंप्लीट एड्रेस होता है सर। एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, एवरी इलेक्ट्रॉन हैज गॉट अ यूनिक एड्रेस इनसाइड एन एटम। दैट मींस every electron has a unique set of 4 numbers which describe about the electron. Now think about this thing. Now taking all this, okay, just after saying inside Asia, if someone tells 764020, इस एक नंबर में बहुत सारा डाटा छिपा हुआ है, ओके। 7 represents that you are from Odisha. 640, ओके, वहां से तुम्हारा कोरापुट डिस्ट्रिक्ट पता चल जाएगा। 20 वहां से कोरापुट है करके पता चल जाएगा। दैट मीन्स इवन दीज नंबर्स कैन एक्सप्लेन अस अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो वैसे ही ये जो पूरा एड्रेस हम लोगों ने बताया, ओके, इसको जैसे कि हम लोग एक पिन कोड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट, वैसे ही हमारा कंट्री का कोड भी होता है +91, ओके। तो उस तरह से कंट्री कोड और फॉलोड बाय पिन कोड अगर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, देन दीज नंबर्स आर इनफ, मुझे इतना सारा डाटा देना नहीं पड़ेगा। तो वैसा ही एक इलेक्ट्रॉन का पोजीशन जो है ना, वो कुछ नंबर से हम लोग बता सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डाटा कुछ नंबर से हम लोग बता सकते हैं। उन्हीं नंबर्स को हम लोग बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। और ये क्वांटम नंबर्स कहां से आया सर? दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ स्क्रॉडिंजर्स वेव इक्वेशन, ओके। चलिए, तो हेडिंग दीजिए क्वांटम नंबर या क्वांटम नंबर्स। गिव अ हेडिंग क्वांटम नंबर्स।
Below that, write down, these are the solutions of Schrodinger's, you can see on the screen, Schrodinger's wave equation. These are the solutions of the Schrodinger's wave equation, which completely describes an electron, that is its orientation, comma, energy, comma, its orientation, comma, energy, comma, shape of the subcell, and as well as spin of the electron. So एक इलेक्ट्रॉन को completely describe करता है, okay? An electron is completely described by a set of numbers which we will call them as the quantum numbers, okay? So quantum numbers, sir, are the solutions of Schrodinger's wave equation which completely describe an electron. तो अभी हम लोग एक एक करके हमारे सारे क्वांटम नंबर्स को देखेंगे. सो क्वांटम नंबर में सबसे पहला आप लोग लिखेंगे सर, we will call it as principal quantum number. The very first one is principal quantum number. So what is this principal quantum number? Write down, give the heading first, principal quantum number. Below that, write down, it denotes, or write down like this, it represents the energy of the shell in which an electron resides. Okay, it represents the energy of the shell in which an electron resides. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी, ओके, और द एनर्जी लेवल ऑफ द शेल बोल सकते हैं इसको, ओके, इन विच एन इलेक्ट्रॉन रिसाइड्स. इसको क्या लिखेंगे नेक्स्ट? इट इज रिप्रेजेंटेड, और ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड दोबारा क्यों लिखेंगे? इट इज denoted by an alphabet. You see, have a look, L. Sorry, it is represented by N, an alphabet N, and it can take the values, it can take the integer values starting from
1 up to n. ओके, सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, n से डिनोट करते हैं। एंड दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या डिनोट करता है, सबसे पहला चीज डिनोट करता है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सा एनर्जी शेल में प्रेजेंट है, इन विच एनर्जी शेल is your electron present, that is denoted by your principal quantum number। तो ध्यान से देखते हैं सर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपने जैसे बोला इट कैन टेक द वैल्यूज 1 2 3 4 5 डॉट 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 अप टू n। तो सर आप बताइए हम लोगों को कि ये n इज इक्वल्स टू 1 क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर मैंने बोला देयर इज एन इलेक्ट्रॉन फॉर विच द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज गिवन टू बी n, तो इसका मीनिंग होता है दैट द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द k सेल। n इज इक्वल्स टू 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, k सेल। एंड इन द सेम वे अगर किसी ने बोला मुझे अरे मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर और उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू है 2, then that means the electron is present in the L cell। In the same way, if what we are having is the principal quantum number for an electron present inside an atom, the value of principal quantum number is given to be 3, that means the electron is present in the M cell। तो इनडायरेक्टली हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बता रहा है सर, इट इज टेलिंग अस द शेल, द एनर्जी शेल इन विच एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है, समझ में आया ये? हाँ सर। और प्रियंका? हाँ सर। ओके, राइट, very good। So just have a look sir, so once we have understood what is principal quantum number, अब आप लोगों को पता चलेगा कि ये principal quantum number आप और एक जगह देखे थे। ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग अननोइंगली, हमें पता नहीं था बट येट हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इससे पहले बहुत जगह यूज किया है। देखिए कहाँ यूज किया है हम लोगों ने। सबसे पहले तो हम लोगों ने यूज किया mvr इज इक्वल्स टू nh/2 पाई। याद कीजिए यहाँ पे n क्या क्या वैल्यूज ले रहा था, 1 2 3 4 अप टू n, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे थे अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वी वर यूजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हियर, राइट। इन द सेम वे और कहाँ यूज किए हैं सर हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अरे हमें पता ही नहीं चला लेकिन हम लोग बहुत जगह यूज किए हैं। Okay, so r is equals to 0.529 into n square by z। यहाँ पे भी हम लोगों ने ये जो n स्क्वायर किया ये भी तुम लोगों का क्या है सर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। उसी तरह से वेलोसिटी इक्वेशन में, उसी तरह से एनर्जी इक्वेशन में, हर जगह हम लोगों ने जो n स्क्वायर यूज किया है, दिस इज नथिंग बट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हमें पता नहीं था बट हम लोगों ने वही यूज किया। तो सिंपली हम लोगों को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट्स okay the energy level in which an electron is present, whether it is present in the first energy level, second energy level, third energy level, fourth energy level, उस हिसाब से हमें पता चलेगा वो k सेल में प्रेजेंट है, l सेल में प्रेजेंट है, m सेल में प्रेजेंट है, एटसेट्रा। ऑल राइट, so once we have understood this, now let us move ahead। now sir okay ठीक है, हमें इलेक्ट्रॉन का एड्रेस के बारे में पता चल गया कि वो कौन सा एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है। चलो हमें ये पता चल गया कि वो के सेल में प्रेजेंट है, एल सेल में प्रेजेंट है, एम सेल में प्रेजेंट है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल कहाँ प्रेजेंट है ये पता चल गया। अब आगे क्या, तो और भी डिस्क्रिप्शन हमारे इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें पता चलता है, देखते हैं। द सेकंड क्वांटम नंबर व्हिच इज गोइंग टू डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज नथिंग बट आर एजिमुथाल क्वांटम नंबर। ध्यान से देखिए, एजिमुथाल, AZIMUTHAL, एजिमुथाल क्वांटम नंबर। ओके
तो सबसे पहले हमें क्या पता चला, इलेक्ट्रॉन एक शेल के अंदर रिसाइड करता है। तो शेल के अंदर कहाँ रिसाइड करता है इलेक्ट्रॉन बोलने से, शेल के अंदर सबसेल में। जैसे फॉर एग्जांपल आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया एक कंट्री है, इस कंट्री के अंदर कहाँ रिसाइड करते हैं आप लोग बोलने से, कंट्री के अंदर एक स्टेट है, उस स्टेट में हम लोग रिसाइड करते हैं। तो उसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन भी एक शेल, एक एनर्जी शेल के अंदर क्या रहता है सर, एक सबशेल होता है। तो सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिसाइड करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है। इट रिप्रेजेंट्स द शेप of the सबसेल। ओके, तो शेल के अंदर क्या आ जाता है, सबशेल आ जाता है। और एजिमुथल क्वांटम नंबर को क्या बताता है हम लोगों को, कौन सा सबशेल में रह रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन, ये भी बताएगा। उसके साथ साथ हम लोगों को ये भी बताएगा कि उस सबसेल का शेप क्या है। सो इट रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ द सबसेल इन विच एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, in which an electron is present, shape of the subcell। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, लिखते हैं, it is denoted by a small alphabet L, as a alphabet L, small alphabet, and it can take the values, and it can take the values as given। क्या है वो वैल्यूज, L का वैल्यू जो है आपका, जो एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू जो है सर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। याद कीजिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहां से स्टार्ट हुआ था, सर 1 से स्टार्ट होता है। 1 से स्टार्ट हुआ था। लेकिन एजिमुथल क्वांटम नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। याद रखिए ये बात, ओके। तो our azimuthal quantum number, the value of azimuthal quantum number starts from 0, but it cannot be greater than n-1। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक नंबर कम ही होगा तुम्हारा एजिमुथल क्वांटम नंबर, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता। बहुत ही सिंपल है। The value of azimuthal quantum number starts from 0, can go up to n-1, whereas principal quantum number will start from 1, can go up to n, but this can go only up to n-1। तो देखते हैं सर, L is equals to 0 का मतलब क्या है, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने बताया एजिमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू इज 0, that means that the electron is present in S subcell। that means the subcell in which the electron is present is called as the S subcell। इसका शेप भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, ओके। एंड इफ अगर किसी ने बोला कि an electron is present whose azimuthal quantum number is 1, that means वो कहाँ प्रेजेंट है बेटा, वो प्रेजेंट है p सबसेल में। और अगर मैं बोल देता हूं एजिमुथल क्वांटम नंबर 2 है, दैट मींस वो कहां प्रेजेंट है, डी सबसेल में। अगर मैं बोल देता हूं 3, दैट मींस वो कहां प्रेजेंट है, एफ सबसेल में। अगर मैं बोल देता हूं 4, तो वो कहां प्रेजेंट है, जी सबसेल में। अगर मैं बोल देता हूं 5, तो वो कहां प्रेजेंट है, एच सबसेल में, एंड सो ऑन। ये ऐसे कंटिन्यू होते जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग क्या है, एस है। तो एन मीन्स L का वैल्यू, दैट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू, किसी ने अगर बोला 0, दैट मीन्स वो है S सबसेल के अंदर। अगर L इज इक्वल्स टू किसी ने बोल दिया 1, दैट मीन्स वो प्रेजेंट है P सबसेल के अंदर, एंड D एंड F एंड सो ऑन। सो इन दिस वे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन का एजिमुथल क्वांटम नंबर जान के हम लोग बता सकते हैं कि वो कौन सा सबसेल के अंदर प्रेजेंट है। ध्यान से देखिए, हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं अभी। से फॉर एग्जांपल
मैंने ना आप लोगों को बताया, मैंने आप लोगों को बताया कुछ ऐसा। फॉर एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है बेटा कि उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया हुआ है 4 एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर दिया हुआ है 1। तो अगर मैं तुम लोगों से पूछा सर बताइए ये कौन सा सेल में और कौन सा सब सेल में प्रेजेंट है, तो n इज इक्वल्स टू 4 मतलब ये फोर्थ सेल में प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है? फोर्थ सेल। तो याद कीजिए k सेल फर्स्ट सेल, l सेल सेकेंड, m सेल थर्ड, n सेल इज द फोर्थ सेल। मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? n एनर्जी लेवल या n एनर्जी शेल में प्रेजेंट है। अच्छा ये तो पता चल गया। अब L इज इक्वल्स टू 1, सर हमें पता है L इज इक्वल्स टू 0 मतलब S सब सेल, सर L इज इक्वल्स टू 1 का मतलब होता है P सब सेल। मतलब फोर्थ एनर्जी शेल में कौन सा सब सेल में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन? P सब सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है बेटा? 4p सब सेल में प्रेजेंट है, जहां पे 4 रिप्रेजेंट करता है आपका एनर्जी लेवल एंड P रिप्रेजेंट करता है आपका सबसेल। P सबसेल में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। अच्छा तो मैं अगर एक और एग्जांपल दूंगा, क्या आप लोग मुझे बताओगे? मैं बताया n इज इक्वल्स टू 2 है और L इज इक्वल्स टू 0 है, तो आप लोग क्या मुझे बता सकते हैं कौन सा सेल और कौन सा सबसेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? सर एल सेल में प्रेजेंट है। एल, के एल, एल शेल में प्रेजेंट है, ठीक है। और कौन सा सब सेल में है? सर एस सब सेल। एस सब सेल में प्रेजेंट है। तो एस सब सेल सेकेंड एनर्जी लेवल का एस सब सेल, तो उसको क्या बोलेंगे? 2s। देखिए एस सब सेल जो है ये ना फर्स्ट एनर्जी लेवल में भी रहेगा, सेकेंड एनर्जी लेवल में भी रहेगा, थर्ड एनर्जी लेवल में भी रहेगा। कौन सा लेवल का सब सेल है बोलने से? सर सेकेंड एनर्जी लेवल का एस सब सेल है, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा 2s। ओके तो सोचो कि फर्स्ट लेन में एक फर्स्ट मीन्स दो स्ट्रीट है, फर्स्ट लेन में भी एक कबीर रहता है, सेकंड लेन में भी एक कबीर रहता है, दोनों का टाइटल भी सेम है। तो हम लोग क्या बोलेंगे उन लोगों को? अरे फर्स्ट लेन वाला कबीर, सेकंड लेन वाला कबीर। उसी तरह से एस सब सेल हर सेल में होता है, जीरो मतलब फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, हर जगह होता है। तो कौन सा सेल का सब सेल है बोलने से हमें बताना है, अरे 2s मतलब सेकेंड सेल का सब सेल, 4p मतलब फोर्थ सेल का p सब सेल। ओके इस तरह से। ओके तो चलिए, तो हम लोगों को समझ में आया कि सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जो कि एनर्जी लेवल बताता है, उसके अंडर हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है जो कि हम लोगों को शेप ऑफ द सबसेल बताएगा करके मैं बताया था। तो अभी तक तो हमें यही पता चला कि कौन सा सबसेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब शेप, सर ये शेप कहां से आया? तो मैं बता दूं आप लोगों को, एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल सबका शेप्स अलग अलग होते हैं। ओके तो एस सबसेल जो है हम लोगों का, एस सबसेल जो है इसका एक्चुअल में शेप होता है स्फेरिकल। इसका शेप क्या होता है? स्फेरिकल। एस सबसेल का शेप होता है स्फेरिकल, लेकिन एस इसका जो नाम आया है वो स्फेरिकल से नहीं आया है सर। एस का मतलब होता है शार्प, एस का मतलब होता है शार्प। ओके लेकिन इसका शेप है स्फेरिकल। तो एस सबसेल, किसी ने अगर तुम लोगों को बोला एस सबसेल तो तुम लोगों को सिंपली एक सर्कुलर स्फीयर या सिंपली एक स्फीयर ड्रॉ करना है। ओके 3 डायमेंशनल स्फीयर, एक गोल सा स्फीयर। ओके दैट इज नथिंग बट आर एस सबसेल। और अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द शेप ऑफ पी सबसेल, पूरा पी सबसेल का शेप अगर किसी ने पूछा तो ध्यान से देखिए,
ऐसे डंबल शेप्ड होता है, लेकिन एक डंबल एक्स एक्सिस के अलोंग, एक डंबल वाई एक्सिस के अलोंग और एक डंबल जेड एक्सिस के अलोंग, एक फूल के जैसा दिखता है। कौन? आपका पी सबसेल। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग एक डंबल रहेगा, वाई एक्सिस के अलोंग एक डंबल रहेगा और आपका जेड एक्सिस के अलोंग एक डंबल रहेगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ओके, तो ये तीनों को एक साथ हम लोग बोलते हैं पी सबसेल। ये शेप होता है आपका पी सबसेल का। उसी तरह से सर डी सबसेल का भी शेप होता है। इसमें एक एक यूनिट का शेप होता है ऐसे डबल डंबल। डी का कैसे रहते हैं सर? डबल डंबल रहते हैं। मैं आप लोगों को शेप्स दिखाऊंगा, बिल्कुल भी मत घबराइए आप लोग। मैं बताऊंगा इनका शेप्स कैसे दिखेगा, बहुत ही क्लियरली आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। बट फिलहाल आप लोगों को ये समझना है सर, एस का शेप होता है स्फेरिकल, पी का शेप होता है डंबल और डी का शेप होता है डबल डंबल। डी का शेप होता है डबल डंबल। ओके, इस तरह से फिलहाल आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए मैं कुछ और दिखा देता हूं आप लोगों को, एक मिनट। स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ सर। ध्यान से देखना। ये देखिए सर, सबसे पहला आप लोगों को जो डायग्राम यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं, डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। तो ये जो स्फीयर दिख रहा है आप लोगों को, ये एस सबसेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो एस सबसेल या इसको एस ऑर्बिटल मैं बोलूंगा। अभी ऑर्बिटल्स क्या है जस्ट इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं। आपका एस सबसेल ऐसे ही दिखेगा। तो ध्यान से देखिए, ये वाई एक्सिस आपका, ये जेड एक्सिस आपका और एक्स एक्सिस के अलोंग ये पास किया हुआ है ऐसे। सो ये एक स्फेरिकल सा हम लोगों का है। ओके, सो सिंपल है। चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे पी सबसेल भी देखेंगे। ठीक है, तो देखो पी सबसेल कैसे दिखेगा। देखिए, तो मैंने क्या बोला सर, अलोंग एक्स एक्सिस एक डंबल रहेगा, अलोंग वाई एक्सिस एक रहेगा और जेड एक्सिस एक रहेगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए ये वाई एक्सिस, देखिए यहाँ पे अगर आप लोगों को दिख रहा है क्लियरली, वाई एक्सिस के थ्रू कुछ भी पास कर रहा है क्या? देखो तो, नो सर। पूरा खाली है। देखो उसी तरह से ऐसे अगर टर्न कर दूंगा तो देखो तो जेड एक्सिस के थ्रू कुछ पास कर रहा है? नो सर। हाँ, लेकिन अगर एक्स एक्सिस को मैं सामने की तरफ लाता हूं तो मुझे दिखेगा कि ये पूरा डंबल एक्स एक्सिस में ऐसे सोया हुआ है, एक्स एक्सिस में है, पूरा डंबल जो है वो एक्स एक्सिस में है। इन द सेम वे अगर हम लोग पी वाई को देखेंगे, अब देखो तो मैंने पी वाई को लोड किया है। देखो अभी एक्स एक्सिस को देखो तो इसमें कुछ भी है एक्स एक्सिस में? एक सेकेंड, ओके एक सेकेंड। एक्स एक्सिस में कुछ भी है यहाँ पे? ये देखिए दिख रहा है आप लोगों को एक्स एक्सिस। ओके, उसी तरह से आप लोग देखेंगे जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस में भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, बट वाई एक्सिस में एक डंबल रहेगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है सर, हम लोगों का पी वाई बोलने से अलोंग वाई एक्सिस मेरा डंबल आ जाएगा। उसी तरह से अगर मैं पी जेड कर दूंगा तो देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग कुछ नहीं रहेगा, बट अलोंग जेड एक्सिस आपका डंबल आ जाएगा। तो इन दिस वे वी आर हैविंग आर पी सबसेल। तो पी सबसेल के अंदर तीन तीन ऑर्बिटल है। एक है
px ऑर्बिटल जो कि x एक्सिस के अलोंग है, एक है py ऑर्बिटल जो कि y एक्सिस के अलोंग है, एक है pz ऑर्बिटल जो कि z एक्सिस के अलोंग है। इन तीनों को साथ में मिला देने से मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मेरा p सबसेल मिलेगा। सर ध्यान से देखिए, अगर अभी आप लोगों को मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए मैं अभी सिर्फ शो कर रहा हूं आपका px, उसी तरह से py, उसी तरह से pz, तीनों को मिला देने से जो बनेगा इसी को हम लोग बोलेंगे p सबसेल। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, p सबसेल। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। चलिए इसी तरह से मैं आप लोगों को डी सबसेल का भी पिक्चर दिखा देता हूं। मैंने पहले ही बोला था बी डी सबसेल का क्या होता है सर, आप लोगों का होता है डबल डंबल। तो ध्यान से देखिए, डबल डंबल हम लोगों को दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए। क्या सर हम लोगों को ये डबल डंबल दिख रहा है कि नहीं? देखिए एक डंबल सर ऐसे, एक डंबल सर ऐसे दिख रहा है सर हम लोगों को डबल डंबल। हाँ सर। यस। तो सबसे पहला है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैं इनका नाम बताऊंगा आप लोगों को। सेकंड वाला डी एक्स वाई आएगा, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में रहेगा। एंड देन आएगा आपका डी एक्स जेड, ओके। एंड देन यहाँ पे आएगा आपका डी वाई जेड और डी जेड स्क्वायर, ये है डी वाई जेड। और सबसे अनोखा स्ट्रक्चर है आपका डी जेड स्क्वायर का। ये अभी जितने भी आप लोगों ने देखा, अभी जितना भी शेप्स मैंने दिखाया, ये सब डबल डंबल है। ये देखो डबल डंबल डबल डंबल, राइट। बट इसके बाद जो मैं अभी डी जेड स्क्वायर का लास्ट वाले का मैं स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूं, ये थोड़ा डिफरेंट है। डी सबसेल के अंदर डी जेड स्क्वायर जो है उसका शेप थोड़ा सा ऐसा होता है, ओके। ये किस टाइप का शेप है सर? तो ध्यान से देखिए सर, सबसे पहले ये रहेगा एंड अलोंग विद दैट ऐसे सैटर्न के चारों तरफ जैसे एक रिंग रहता है वैसे एक रिंग रहता है। तो डी जेड स्क्वायर का ये शेप होता है, ओके। सो हम लोगों ने क्या सीखा सर? आज हम लोगों ने ये सीखा कि सर कैसा होता है हमारे सबसेल का शेप्स, ओके। एस सबसेल होने से स्फेरिकल होता है, गोल होता है एकदम एक स्फीयर के जैसा, बॉल के जैसा। सर पी सबसेल होने से ना डंबल शेप का होता है, राइट। तो सर ना वो ना एक्स एक्सिस के अलोंग एक डंबल रहता है, वाई एक्सिस के अलोंग एक डंबल रहता है, जेड एक्सिस के अलोंग एक डंबल रहता है। तीनों डंबल को मिला देने से पी सबसेल बोलते हैं। अकेले 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 एक्स एक्सिस में जो रहता है उसे पी एक्स बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। उसी तरह से अकेले अकेले पी वाई को क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल। उसी तरह से अकेले अकेले पी जेड को क्या बोलते हैं? अलोंग जेड एक्सिस जो रहता है डंबल, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। सो अकेले अकेले सिंगल सिंगल जो यूनिट है वहां पे उन्हें हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल्स। और तीनों को मिला के एक साथ पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों अगर मिल जाता है एक साथ, हम लोग इसको बोलते हैं पी सबसेल। क्या सबको क्लियर है सर? कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। ओके, वेरी गुड। तो अगर आप लोगों को क्लियर है तो हम लोग एक बार ये देख लेते हैं। देखिए ये है मेरा 1s, ये है मेरा 2s। मतलब देखिए आप लोग गौर से देखिए, बड़ा मजेदार चीज है। देखिए ये 1s है, ध्यान से देखिए बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो 1s ऑर्बिटल के बाद क्या है आपका? 2s है, ओके। तो 2s के बाद मतलब फर्स्ट सेल में s ऑर्बिटल है और सेकंड सेल में s ऑर्बिटल है। वो बड़ा होता है फर्स्ट सेल का s सब सेल से थोड़ा बड़ा होता है 2s। और उसके बाद आता है 3s, ये और थोड़ा बड़ा होता है। उसके बाद
उसके अंदर आता है आपका 2px। ध्यान से देखिए, ये है 2px। तो अगर मैं अभी 3s हटा दूंगा तो 2px क्लियरली दिखेगा, ये देखिए 2px। तो उसी तरह से 2py, तो ये देखिए 2py, और उसी तरह से 2pz, तो ये देखिए 2pz। ओके, तो ये तीनों मिला के जो है वो तुम्हारा पी ऑर्बिटल होता है, पी सबसेल होता है। एक सेकेंड, मैं 1s 2s को हटा देता हूं तो ताकि आप लोगों को ये दिखे। तो ये इतना क्लियरली आप लोगों को नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या है सर, ऐसा है। ये देखिए, ये है आपका पी, पूरा का पूरा पी सबसेल। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया कि हम लोग एग्जैक्टली क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग सारे ऑर्बिटल्स का शेप देख लिए सर यहाँ पे। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट क्वांटम नंबर बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो सर हम लोगों ने अब तक 2 क्वांटम नंबर सीखा। एक क्वांटम नंबर ने हमें सेल के बारे में बताया, दूसरा क्वांटम नंबर में हमें सब सेल के बारे में बताया। अब आता है हमारा तीसरा क्वांटम नंबर, जिसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लिखिए, इट रिप्रेजेंट्स द it represents the orientation, it represents the orientation of the subcell, और सबसेल नहीं लिखूंगा, it represents the orientation of the orbital। अभी अभी मैंने बताया तुम लोगों को, दिखाया, राइट। पी सबसेल के अंदर px एक ऑर्बिटल है, py एक ऑर्बिटल है, pz एक ऑर्बिटल है। डी सबसेल के अंदर dxy एक ऑर्बिटल है, dyz एक ऑर्बिटल है, dzx एक ऑर्बिटल है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक ऑर्बिटल है, एंड dz स्क्वायर एक ऑर्बिटल है। तो सबसेल के अंदर रहता है ऑर्बिटल। तो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन विच एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, in which an electron is present। ओके, ऑर्बिटल के बारे में बताता है। तो कैसे बताता है सर, सबसे पहले इट इज डिनोटेड बाय m and it can take values, and it can take values m is equals to, कहां से कहां तक वैल्यूज ले सकता है, -l डॉट 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 0 डॉट 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 प्लस l। इट कैन टेक ऑल द वैल्यूज फ्रॉम -l टू +l। क्या ये क्लियर है? हाँ मतलब सर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू एजिमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू एजिमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। एजिमुथल क्वांटम नंबर दिया हुआ रहेगा तभी जाके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आप लोगों को पता चलेगा। ओके, ये आगे बढ़ाने से पहले या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में और भी कुछ बताने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट इन 3D स्पेस। 3D स्पेस में कैसे अरेंज्ड है कोई भी चीज। ओके, सो अरेंजमेंट इन 3D स्पेस को हम लोग बोलते हैं, राइट, ओरिएंटेशन। हम लोग उसी को बोलते हैं ओरिएंटेशन।
ओके। जैसे फॉर एग्जांपल देखो तो, से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉटल है मेरे पास, ऐसा वाला एक बॉटल है। और अगर मैं इस बॉटल को फेंकता हूं तो मेरे पास दो तरीके हैं सर। एक है कि, ध्यान से देखिए, ओके, जो भी, ये नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। मेरे पास दो तरीके हैं। एक है, ये बॉटल जिस ओरिएंटेशन में अभी है, मतलब जैसे अभी है वैसे ही सेम उठा के मैं कहीं और ले जा सकता हूँ बिना इसका ओरिएंटेशन चेंज किए। 3D स्पेस में वो जैसा है वैसा सेम वैसे ही उठा के ले जाएंगे। एक और तरीका क्या है, इसको घुमा घुमा के देखिए। पहले इसका ओरिएंटेशन ऐसा था, उसके बाद हम लोगों ने इसका ओरिएंटेशन को थोड़ा सा ऐसा कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम इसका ओरिएंटेशन क्या हुआ, पूरा उल्टा हो गया। ओके, ऐसे। सो ओरिएंटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो नेक्स्ट टाइम हम लोगों का इसका ऐसा हो गया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सिंपली ये ऐसे रोटेट करते हुए जा रहा है। पता चल रहा है कि नहीं हम लोगों को? हाँ सर। सो ओरिएंटेशन मतलब यही होता है सर, कि 3 डायमेंशनल स्पेस में वो कैसे कैसे रोटेट हो रहा है या कैसे ओरिएंट हो रहा है, अपने आप को अरेंज कैसे किया हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं ओरिएंटेशन। तो हमारा जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये हम लोगों को बताएगा ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन विच एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो जैसे मैंने बताया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू एजिमुथाल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। ओके, तो ध्यान से देखिए सर, इसका मीनिंग क्या हुआ। हैव अ लुक। से फॉर एग्जांपल मेरे पास एजिमुथाल क्वांटम नंबर दिया हुआ है 0। ओके, तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है सर, एजिमुथाल क्वांटम नंबर 0 का मतलब होता है कौन सा सबसेल बेटा? सर एस सब सर। वेरी गुड। तो अब L जब 0 है तो M का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? चलिए इस इक्वेशन में देखते हैं M का वैल्यू क्या हो सकता है। -0 डॉट 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 0 डॉट 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 +0। तो 0 0 0, एवरीथिंग इज 0, सो दैट मीन्स M भी क्या है, सिर्फ 0 है। मतलब S सबसेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल है, वो है S ऑर्बिटल। इसीलिए हम लोग कभी कभी S को ही सबसेल भी बोल देते हैं, कभी कभी S को ही हम लोग ऑर्बिटल भी बोल देते हैं, क्योंकि S के अंदर एक ही ऑर्बिटल है, वो है S ऑर्बिटल, जो कि स्फेरिकल है। अब इसका कोई x एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग, z एक्सिस के अलोंग कोई ओरिएंटेशन नहीं है। एक स्फीयर जिधर से भी देखोगे सेम दिखेगा। इसीलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है, अगर एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सिर्फ 0 है, इसके अंदर फिर कुछ नहीं आएगा। बट अब देखो तो, अगर मैं मेरा ले लिया मैंने एजिमुथल क्वांटम नंबर 1, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? पी सब सर। पी सबसेल रिप्रेजेंट करता है। बहुत अच्छा बात, वेरी गुड। तो अगर ये p सबसेल रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? ध्यान से देखिए, यहां से पता चलेगा हम लोगों को सर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू -L से स्टार्ट होगा, मतलब -1 से स्टार्ट होगा। उसके बाद कौन सा इंटीजर है? सीधा 0 और +1। तो सर आप हम लोगों को बताइए, -1 क्या रिप्रेजेंट करता है, 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, और 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? सबसे पहला चीज है कि हमें पता चला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितने हैं? 3 हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितने हैं? 3 है। -1, 0, +1। इसी से हमें पता चल गया कि p सबसेल में 3 ऑर्बिटल रहेंगे। कितने ऑर्बिटल रहेंगे? 3 ऑर्बिटल रहेंगे।
ओके, कौन कौन है वो? along x एक्सिस एक ऑर्बिटल रहेगा, उसको बोलेंगे px। along y एक्सिस एक ऑर्बिटल रहेगा, उसको बोलेंगे py। और along z एक्सिस एक ऑर्बिटल रहेगा, उसको बोलेंगे pz। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, तो हम लोग एस सबसेल के लिए देखे थे, जहां पे हमें पता चला था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एस सबसेल के लिए सिर्फ एक ही है, 0। तो इसीलिए उसका ऑर्बिटल्स भी कितने थे? सिर्फ एक था। बट हमारे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हम लोगों को कितने क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मिले? 3। इसी से हमें क्या पता चला, यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3 ऑर्बिटल्स हैं। और हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताया? ओरिएंटेशन के बारे में। तो इसीलिए ये बताता है, एक आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक आपका वाई एक्सिस के अलोंग है, एक आपका जेड एक्सिस के अलोंग है। ऐसे आप लोगों को पता चलेगा। क्या ये समझ में आया बेटा? हाँ सर। Okay, very good. Now, let us make our understanding even little deeper by writing now the magnetic quantum number for L is equals to 2. चलिए, अब हम लोग L is equals to 2 के लिए लिखेंगे, ठीक है? L is equals to 2 क्या शो करता है? L is equals to 2 शो करता है D सबसेल। सबसेल के अंदर क्या रहता है? ऑर्बिटल। सबसेल के अंदर क्या रहता है? ऑर्बिटल। ओके, मैं ऑर्बिटल का डेफिनेशन भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या क्या वैल्यू ले सकता है अगर L2 है तो? बताइए। सर -2 -2 0 नहीं नहीं नहीं, जीरो नहीं, उसका नेक्स्ट इंक्रीज है। -1 0 हाँ हाँ +1 +2। हाँ। तो यहां से क्या पता चला हम लोगों को? कितने ऑर्बिटल्स रहेंगे सबसे पहले पता चला। तो कितने ऑर्बिटल्स? 1 2 3 4 5। तो क्या अभी अभी मैंने आप लोगों को डायग्राम्स दिखाया था, वहां पे क्या आप लोगों को याद है कि डी के लिए हम लोग 5 देखे थे? तो हम लोग कौन कौन सा देखे थे? डी एक्स वाई देखे थे, डी वाई जेड देखे थे, डी जेड एक्स देखे थे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देखे थे, और एक डी जेड स्क्वायर देखे थे। These are the orientations. Okay, एक्स वाई मतलब एक्स वाई प्लेन में आपका डबल डंबल रहेगा, उसको डी एक्स वाई बोलेंगे। उसी तरह से डी वाई जेड मतलब डी वाई जेड प्लेन में वाई और जेड, डी वाई जेड प्लेन में आपका डबल डंबल रहेगा। डी जेड एक्स मतलब डी जेड और एक्स एक्सिस के अंदर रहेगा आपका डबल डंबल। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? ऐसे along x एक्सिस एंड y एक्सिस। बाकी सब देखिए x और y, y और z, z और x के बीचों बीच था। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर x और y एक्सिस के ऊपर आएगा डबल डंबल। और लास्ट में है डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर का शेप मैंने लास्ट में दिखाया था आप लोगों को, अगर आप लोगों को याद है तो। कैसे दिखाया था सर मैंने आप लोगों को डी जेड स्क्वायर का शेप? सर ऐसे एक डंबल था और सैटर्न के चारों तरफ जैसे रिंग होता है वैसे एक रिंग था, किसमें? जेड एक्सिस के अलोंग। क्या याद आ रहा है ये? हाँ सर। तो इस तरह से हम लोगों को क्वांटम नंबर्स हमें बहुत कुछ बता देता है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए सर, अभी मैं इसका और भी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन बताता हूँ, ठीक है? आप लोग ध्यान से देखिए। ओके, -1 मुझे बता दिया था पी एक्स, 0 बता दिया था पी वाई, और +1 बता दिया था पी जेड। अब देखिए, जैसे मैं अगर आप लोगों को 3 डिफरेंट एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता हूं, देखिए आप लोगों को मैंने बताया n इज इक्वल्स टू 3, l इज इक्वल्स टू 1, m इज इक्वल्स टू -1 पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है।
एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है n is equals to 3, l is equals to 1 and m is equals to -1 में। बताओ ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है? तो तुम बताओगे सर n is equals to 3 मतलब ये थर्ड सेल में, दैट इज m सेल में प्रेजेंट है। अब ये m सेल का तो कोई काम नहीं है हम लोगों को, थर्ड सेल में प्रेजेंट है तो लिख देंगे 3। So L is equals to 1, सर L is equals to 1 मतलब वो P सब सेल में प्रेजेंट है, मतलब 3P में प्रेजेंट है। अब ये बोल रहा है M is equals to -1, सर P के अंदर -1 का मतलब होता है PX सब सेल। -1 का मतलब क्या होता है? PX सब सेल। ध्यान से देखिए -1 यहाँ पे भी दिख रहा है, ये -1 किसका है? D का है। अगर L2 होता तब -1 में मैं 2 का -1 देखता जो कि डिवाइजेड है, बट हमारा L क्या है? 1 है, मतलब L1 मतलब सब P सब सेल, P सब सेल के अंदर -1 मतलब मेरा PX, तो 3PX। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? 3PX ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। क्या ये समझ में आया? हाँ सर। सबको समझ में आया बेटा? हाँ सर। ध्यान से देखिए, अगर मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा तो क्या आप लोग मुझे आंसर बता सकते हैं? ध्यान से देख के बताइए, ठीक है? तो अगर मैंने आप लोगों को बता दिया एक इलेक्ट्रॉन है जिसका एड्रेस हम लोगों को दिया हुआ है, ओके, एक इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए हम लोगों को दिया हुआ है n is equals to 3, l is equals to 2, m is equals to -1। बताइए तो कौन सा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? सर 3D YZ। 3DYZ, क्या बात है, वेरी वेरी गुड। 3, ओके, थर्ड सेल में D, बिकॉज L इज इक्वल्स टू 2 हुआ तो D में, और M इज इक्वल्स टू -1 हुआ मतलब 2 के अंदर -1 देखना है, तो दैट इज 3DYZ ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा बात है। तो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे जहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन ऑर्बिटल, और इसी के साथ लास्ट क्वांटम नंबर बताऊंगा, दैट इज योर स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, टिल देन इस क्लास को, क्वांटम नंबर्स को अच्छे से ध्यान से देखिए, याद कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, दैट विल बी इट फॉर नाउ, वी विल मीट अगेन।